السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ اکیڈمی ممبئی کے بانی مستقرات الحاج جناب سید نوری صاحب، جامعہ نظام الدین اولیاء کے ڈائریکٹر جناب محمود قاضی صاحب، اور ہمارے دوسرے احباب سے متعلق جاننے اور پہچاننے والے، بڑی خوشی ہے مجھے کہ آج میں کئی سالوں بعد جامعہ نظام الدین میں میرا آنا ہوا، بڑی تبدیلی ماشاءاللہ میں نے پائی، بڑی خوشی ہوئی۔ جامعہ نظام الدین اولیاء سے میری وابستگی اس وقت سے ہے جب جامعہ نظام الدین اولیاء پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت سے وابستگی اس کی رہی ہے ماشاءاللہ، اور ظاہر اس کا پہلا اکیڈمی ڈائریکٹر میں ہی تھا، اور علامہ اشرف قادری صاحب میرے گھر میں ایک ہفتہ تھے اور ہم دونوں نے مل کر کے اس کا نصاب بنایا تھا، جو دعوت کے نصاب تھا۔ تو اس سلسلے میں 15 منٹ کا وقت میرے پاس ہے، میں اس میں کیا کروں میں، پر مجھے خوشی ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ ناموس رسالت کے تعلق سے بڑی کانفرنسیں ہوئی اور ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ اللہ کے نبی کی عظمت کا بیان کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کہ قیامت تک کرتا رہے تب بھی مکمل نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات عرض کروں گا، جیسے فائز بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا اولیاء کرام کے مقام ایسا ہی ہے جیسے فرشتوں کے درمیان جبریل امین کا مقام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مومنین کے مقام کی انتہا اس وقت ہوتی ہے جب صالحین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور صالحین کے مقام کی ابتدا پر شہداء کے مقام کی انتہا ہوتی ہے۔ شہداء کے مقام کی جہاں ابتدا ہے، صدیقین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں جہاں صدیقین کے مقام کی انتہا ہے وہاں نبیین کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں نبیین کے مقام کی ابتدا ہے وہاں رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور جہاں رسولوں کے مقام کی انتہا ہے وہاں اولو العزم رسول کی انتہا ہے، اور جہاں اولو العزم رسول کی انتہا ہے وہاں آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہے، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہے اس کی انتہا کیا ہے وہ صرف خدا جانے اور خدا کا رسول جانے۔ اس سے اللہ کے نبی کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ موجودہ زمانے کے اندر مسلمانوں کے اندر بڑے مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہم جہاں بھی رہیں ہمارا مزاج دعوتی ہونا چاہیے، ہمارا کردار دعوتی ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے کردار سے لوگ دیکھ کر کے اسلام کی طرف مائل ہوں، ہمارے مزاج کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں، ورنہ آج بہت ساری طاقتیں ہمیں مٹانے پر تلی ہوئی ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ مسلمان جس حالات سے زمانے میں دو چار ہے، اور کچھ غیر مسلموں اور کچھ خاص مخصوص تنظیموں نے اس کی زندگی دوبھر کر رکھی ہے۔ واٹس ایپ پڑھیے، یوٹیوب پہ دیکھیے، آج کتنے حالات ایسے مسلمان دو چار ہیں۔ ہماری وہ بچیاں جو اسکول کالجوں میں جاتی ہیں، RSS کے گنڈے ان کو اپنی جان میں پھنسا کر کے نکاح کر رہے ہیں۔ ہزاروں درخواستیں اسی کورٹ کے اندر موجود ہیں کہ میں فلاں ہندو لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مسلمان لڑکیوں کی طرف سے۔ ہر جگہ ہمیں پریشانی ہے، اور ایسے ماحول میں اگر ہمارے عقیدے اور تحفظ کے لیے اگر کوئی تنظیم قائم ہوتی ہے، کوئی جلسہ کیا جاتا ہے تو ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ناشر سنت الحاج سید نوری صاحب کو کہ ناموس رسالت کا پرچم پورے ہندوستان میں بلند کر رہے ہیں، ہر جگہ جا بجا جلسے کر رہے ہیں، رسول پاک کی عظمت سے آپ کو باخبر کرا رہے ہیں۔ اور ادارے شرعیہ جو ہماری آخرت کی بنیادی ضرورت ہے، جب تک ہم شریعت کے دائرے میں نہیں رہیں گے رسول کی عظمت سے باخبر ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہمیں ان خبر کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم ناموس رسالت کا احترام کر سکیں، تحفظ کر سکیں، اور اس پر اپنی جان قربان کر سکیں۔
ये दोनों का इश्तराक जामिया निज़ामुद्दीन औलिया की वसीह हाल के अंदर बहुत खुशगवार है। हमारी सबकी परेशानियां बहुत हैं, उन परेशानियों का हम जिक्र नहीं कर सकते। हालत तो ये है कि एक दो जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचैन है बेचारा कहाँ से उठे। ये सूरत हाल हमारी है। ऐसे माहौल में अगर हम कुछ कर ले जाएं अपने लिए, अपनी मिल्लत के लिए, अपनी कौम के लिए, तो हमारे लिए सआदत की बात होगी। हमारे मुक़र्रिरीन कराम ने, उलमाए कराम ने जो कुछ पेश किया है, अगर हम उस पर तवज्जो से सुने और उस पर गामज़न रहें तो हमारे ख्याल से हमारी ये बहुत बड़ी सआदत होगी। यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी में तकरीबन 30-32 साल से मैं हूँ। मदारिस में रहना, वहाँ की ज़िंदगी बसर करना तो बहुत आसान काम है। जैसे यूँ पाँव फैला दीजिए, हर पाँव में कुछ कुछ टोकने वाला नहीं रहता है। मगर यूनिवर्सिटी के लाइन में जहाँ पे गड़बड़ी की तहाँ तक हमला करने वाले होते हैं। और ऐसे में जहाँ पर मौलाना मुस्लिम देवबंदी भी मौजूद है, शिया भी मौजूद है, वहाबी भी मौजूद है, कादियानी भी मौजूद है, बनाना मुस्लिम, वहाँ पर बरेलवी होता है तो सारी निगाह बरेलियों पर होती है। सब मज़ाहिब बातिना एक प्लेटफॉर्म पर जा करते हैं और बरेलवी बेचारा तनहा पड़ जाता है। यही हाल मैं देख रहा हूँ 32 साल से। चुनांचे तो मैंने अपनी किताब लिखी हूँ दारुल उलूम देवबंद का बानी कौन, और मैंने उसको ये साबित किया कि दारुल उलूम देवबंद का बानी कायम करने वाला, बुनियाद रखने वाला, आगे बढ़ाने वाला एक सुन्नी सऊद अकीदा था, जो उसका अकीदा उस जमाने में वही था जो जमाने में बरेलियों का है। उसी अकीदे के शख्स ने दारुल उलूम देवबंद को कायम किया था। मियां राज शाह के मुरीद थे वो, मियां राज शाह के खलीफा थे वो, सिलसिले कादिया में बैठ थे वो। देवबंदियों को चाहिए कि इस इदारे को सुन्नियों के हवाले किया जाए, रज़ा अकेडमी के हवाले कर दिया जाए ताकि वो इदारे को चला सके। ऐसे माहौल में किताब लिखी तो पूरे हिंदुस्तान की दुनिया है देवबंदी का ज़लज़ला पड़ गया। एक नहीं, मेरे मुखालिफ न जाने कितने लोग खड़े आ गए। अखबार में 2 महीना बहस चली मेरी मुंह से, फोन आए कि नून साहब जिंदा रहना कि नहीं रहना है, मैंने क्या क्या फोन हमारे पास। हमने कहा बात चली है, बहस कीजिए, मुकाबला कीजिए, कलम की ताकत का इस्तेमाल कीजिए, हम आपके सामने तना है। और हमारे साथ कोई आदमी नहीं था संसद के अंदर, सिर्फ मैंने तभी तनहा मुकाबला किया और बेहमदी ताला मेरे जवाब पर गुफ्तगू खत्म हुई। और आज तक उस किताब का कोई जवाब नहीं आया। 97 के अंदर किताब शायद उसके 2 एडिशन भी शाये हुए, लेकिन देवबंदियों की तरफ से कोई, इसलिए कि सारे हवाले देवबंदियों की किताबों से साबित किया गया था कि देवबंदियों नहीं बलियों कहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मज़हब हक़ानियत पर कायम हैं और इंशाअल्लाह कायम रहेंगे। और यही हमारी हक़ानियत है जो हमको बाकी रखे हुए हैं, वरना हमारे यहाँ कितने अल्लामा हैं, किस काम के हैं, कितने मुफक्किरीन हैं, न जाने कितने क्या क्या हैं, कितनी तंजीमें हैं छोटी बड़ी। कोई गली की तंजीम है, कोई मतलब कमरे की तंजीम है, कोई घर की तंजीम है, कोई मुफ्तियाँ तो गली नंबर 28 है, कोई मुफ्तियाँ तो गली नंबर फला है, कोई मुफ्ती तो फला नंबर बढ़ने का है, न जाने कैसे कैसे। लेकिन बहरहाल हमारी तंजीम कायम है इसकी बुनियाद पर और चल रही है। अगर इज्तिमाई तौर पर हम मसलके अहले सुन्नत पर कायम रखते हुए उसी का सबूत दें जो हमारे अकादे ने दिया है और किसी को नहीं मिला है, तो ये क्या बात है। अगर हम सब पे कायम है तो दुनिया कुछ नहीं हमारा कर सकती है और हम हज़रत रसूल का परचम बुलंद करते रहेंगे, यही हमारी पहचान है। और हम कुछ नहीं है, अगर रसूल की अज़मत के हम आयल हैं, उसका परचम बुलंद कर रहे हैं। और ये आदमी हर से पढ़ा लिखा नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। जो जिस फील्ड में वकालत के अंदर है वहाँ से कर सकते हैं, तिजारत के अंदर वहाँ कर सकते हैं। ये कुछ खास नहीं कि मदरसे की चार दीवारी के अंदर हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है। अगर हमारा मिजाज दीनी है, अगर हमारा मिजाज मदनी है, अगर हम रसूल के चाहने वाले हैं तो हर जगह से काम अंजाम दे सकते हैं और वो रसूल अपना सकते हैं जो रसूल हमारे सहाबा कराम का था, जो हमारे औलिया कराम का था, जो हमारे बुजुर्गान दीन का था। उन उसूलों पर हम चलें, उसको अपनाएं तो तहफ़्फ़ुज़ नबूवत रिसालत भी होगा और शरीयत का क़याम भी होगा। अदारे शरीयत के मसाइल लोगों तक पहुँचेंगे। सबके जो उस पर अमल रहे, लेकिन बहुत डगर है, बहुत कठिन है डगर पढ़ने की, इसी वजह से हम उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। तो लिहाजा कितने लोग यहाँ शरीक हैं जो हमारे उलमाए कराम के बयानात हैं, जो पैगाम हैं। हम मुसलमान हैं, रहेंगे, हमारा काम चलता रहेगा, लेकिन ये सब यहीं तक रहेगा।
अगर हमारे दिल से अक़ीदत मुस्तफ़ा को फिर उसका फेंक दिया गया सोसाइटी की तरफ से, तंजीमों की तरफ से, दुश्मनों की तरफ से, तो फिर हमारा जीना बेकार होगा। इसलिए जरूरी है कि हम जिस फील्ड के अंदर हैं, जो हमारा तरीक़ाकार है, जो हमारा मिशन है, उस मिशन को अपना करके हम हज़रत मुस्तफ़ा का परचम बुलंद करते रहेंगे। ये हमारी कामयाबी है और इसी में आफियत है। और हर हाल में हम शरीयत का दामन ना छोड़ें, इसलिए कि शरीयत जिंदगी का जो दस्तूर बताता है, हर मजहब के अंदर कोई दस्तूर नहीं है। कैसे उठे नहीं पता है, कैसे चले नहीं पता है, कैसे बड़ों से पेश आए नहीं पता है, लेकिन इस्लाम ने सब कुछ बता दिया है। अभी मेरे पास 3-4 दिन पहले एक नॉन मुस्लिम लड़का आया, वकील बाकायदा है वो, तो वो जब मुझसे मुलाकात करके गया, मैं अपनी ताज़ीम नहीं कर रहा हूँ, कल बता रहा हूँ, जब मुझसे बयान करके गया तो वहाँ कहना कि मैं तो मुसलमानों के बारे में जाने क्या क्या सुनता था, लेकिन जब से अंजुम साहब से मेरी मुलाकात हुई है तो मेरा भी दिल मायल हो कि मैं भी मुसलमान बन जाऊँ। सुभान अल्लाह। दोबारा आया और दोबारा जब मुझे इतना मिली कि इस किस्म का उसका मिजाज है, तो हमने कहा इस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। फिर दोबारा आया, पढ़ा लिखा है, वकील है बाकायदा, पढ़ा लिखा में समझा है, सलाम करने लगे मुझसे, हमने कहा नहीं नहीं ये हाथ खींच लिया है, तो वहाँ सलाम करो। हमने कहा इस्लाम तो कैसा मजहब है, तुम्हें हर चीज़ बता दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस उसको फॉलो करना, बस सब ये ऐसा करना है, ऐसा खाना, ऐसा सोना, ऐसा लेटना, बड़ों के साथ ऐसा करना, बच्चों के साथ ऐसा रखना, तिजारत में जाना तो ऐसा करना, सामान खरीदना तो ऐसा करना है। तुम्हें कुछ सोचना नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, वहाँ तो सोचना पड़ता है, यहाँ सोचने की जरूरत नहीं, यहाँ तो फॉलो करने की जरूरत है बस। अब 80% उसका दिल मायल हो गया कि हम दादा 55 दिनों की बात और है, ऐलान आ जाएगा कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि ऐसे हर मुसलमान की जो जिंदगी है वो दावती होना चाहिए, जहाँ भी रहे, जिस फील्ड के अंदर रहे, उसको देख करके लोग इस्लाम की अजमतों का एतराफ़ करें, इस्लाम की तरफ उनका मैलान हो। अगर हम ऐसे हैं तो तुम खैर उम्मतन उखरजत के दावेदार हो सकते हैं, वरना दावेदार नहीं। और हम खैर उम्मत हैं तो खैर उम्मत का कुछ फायदा होना चाहिए ना, और खैर उम्मत का फायदा ये है कि लोग आपको देख करके, आपके किरदार और अमल को देख करके, आपके तौर तरीक़ को देख सके, आपके नशिस्त व बर्खास्त को देख करके, आपके खुद व नोश को देख करके, आपके रहन सहन को देख करके दूसरे सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आखिर ये किस धर्म का मानने वाला है, जिसके अंदर इतनी अच्छाई है, जिसके अंदर इतनी खूबी है। और इस्लाम फैला इन्हीं बुनियादों पर है। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास रमजान रोजा रखे हुए थे, वो नफली रोजा था। एक औरत के यहाँ भैंस पैदा हुआ, पहला दूध था, निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में लेकर के आई कि हुजूर ये मेरे भैंस ने दूध दिया है, पहला दूध है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे नोश फरमाएं। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं फरमाया कि मैं रोजे से हूँ, नफली नहीं फरमाया, खाओ ले आओ पी लिया। अब उस दिल की औरत के ऊपर क्या गुजरी होगी, पी लिया तो रोजा छोड़ दिया, इसलिए कि नफली बनता। तो दिल रखने के लिए निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा नाम अंजाम, यही दिल रखना, यही दिल नहीं, दिल बदस्तावर की हज्जे अखबार है। अगर दिल लोगों का आप कब्जा कर लेते हैं, दिल पर आपकी हुक्मरानी हो जाती है, तो फिर इस्लाम को कबूल करने में फिर मुश्किल नहीं पेश आती है। ऐसे चंद बात अगर किसी गैर मुस्लिम के साथ पेश आ जाए तो ऑटोमेटिक उसका दिल इस्लाम की तरफ मायल हो जाता है। तो जाहिर अजीज दोस्तों मेरे, ये सब जलसा इसीलिए किया जाता है, हजरे जलसे ऐसे होते हैं कि आपको इस्लाम की तरफ मायल किया जाए और आप मुसलमान बन जाए। मुसलमान तो बहुत है, लड़ी भी है, टोपी है, जाने क्या क्या है, और न जाने ऐसे वो लोग जो गुस्ताखाने रसूल है, उनके चेहरे पर भी दाढ़ी है, टोपी सब कुछ है, सही इस्लाम नहीं। इस्लाम के अंदर रमक हो, रोशनी वो नहीं है। तो उनको खुशी है कि तमाम जितने बनाने मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर लोग मौजूद हैं, उनमें हम सबको सच्चा मुसलमान बनाया, ये बड़ी खुशी की बात है। और हमारे आपके पेशवा इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह तआला दौरे हाज़िर के अंदर हमारी रहनुमाई करने वाले हैं, जिन पर किसी को नुक्ता रखने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये बड़ी खुशी की बात है, हम ऐसे रहबर के, ऐसे कायद के मुतबे पैरोकार हैं। तो दोस्तों रज़ीलों की गुजारिश है ये, से कहीं फायदा नहीं है, हमारा असल चीज़ है, अपने को सही मुसलमान बनाइए, सही किरदार पेश कीजिए और सही अतबार से लोगों को अपनी तरफ माइल कीजिए। अगर इसमें आप कामयाब हो जाते हैं तो हमारे ख्याल से आपकी ये भी ज़िंदगी अच्छी होगी, और जो ज़िंदगी की आपको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी अच्छी हो जाएगी। और अभी हमारे कभी ने फरमाया कि आपको इल्म भी चाहिए, आपको दौलत भी चाहिए, आपको इज्जत भी चाहिए, आपको मशहूरत भी चाहिए, और सुबह शाम हम दुआ गाते हैं अल्लाहुम्मा रब्बना आतना
فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. سب جو مانگتے ہیں شاید نہ سمجھتے ہوں کہ اللہ ہمیں دنیا کی اچھائی دے دے, تو دنیا کی اچھائی کی ہم بھیک مانگ رہے ہیں نظام میں جا کر کے, یا جا کر کے بمبئی کی حاضری کر راستے میں بیٹھ جائیں بھیک مانگے. یہ دنیا کی اچھائی نہیں ہے. دنیا کی اچھائی یہ ہے کہ پیسہ بھی ہمارے پاس ہو, طاقت بھی ہمارے پاس ہو, قوت بھی ہمارے پاس ہو, علم بھی ہمارے پاس ہو, اثرات بھی ہمارے پاس ہو, تعلقات بھی ہمارے پاس ہو, یہ سب ہمارے پاس ہو. اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کو نمبر 2 پر رکھا ہے اور دنیا کی اچھائی کو نمبر 1 پر رکھا ہے. لیکن ہمارے علماء صاحب اس پر توجہ نہیں دلاتے اپنے سامنے اپنے سامنے بیٹھنے والوں کو. دنیا کی اچھائی پیدا کرو اور سب کچھ کرو تو انشاءاللہ ہمیں پھر کوئی کام کرنے میں دقت نہیں ہوگی, کوئی پریشانی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے. اور جس مقصد کے جلسے کا آغاز ہوا ہے, خاص طور سے ہمارے سید نوری صاحب کو جو پرچم اسلام بنا تنظیمیں تو بہت بتایا میں نے آپ سے, ہندوستان میں بے شمار تنظیمیں ہیں, لیکن اگر خبر میں کسی کا نام پڑھنے ماتا تھوڑا تاکہ نہیں کھاتا ہے. کیوں مجھے کچھ ہوگی نا, تن من دھن اس نے سب کچھ قربان کر رکھا ہے اسلام کے کاج پر, چاہے محمد رسول سے متعلق ہو چاہے اور کسی مسئلے سے متعلق ہو. اور میں آپ کو بتا دوں کہ گنیش شریعت میں قائم کرنی اچھی بات ہے, لیکن سازش RSS کی میں نے سنا اپنے کانوں سے کہ جس طرح طلاق ثلاثہ پر بائنڈ ہوا ہے اس پر بھی بائنڈ ہونے والا ہے. چھوٹی چھوٹی یہ شریعہ نہیں کچھ ہوگا, یہ تو نہیں چلے گا. جب حکومت کا باقاعدہ قانون ہے اس پر لوگ عمل کرنا چاہیے. کچھ سانچن لوگ لگے رہے ہیں, لیکن بہرحال ہمیں ان کو آگے جب وہ دیکھا جائے گا. ابھی ہمیں اپنے آپ کو صحیح معنوں مسلمان بنانا ہے اور صحیح معنوں اسلام کے دائرے میں رہ کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی باتوں کو قبول فرمائے اور صحیح معنوں میں اسلام اور تحفظ ناموں سے رسالت کرنے کو توفیق بخشے اور شریعت کے اندر جو کچھ فرمایا گا اللہ کے نبی کے حوالے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بندہ دین سے شکرا ما علینا یا آخری السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.